मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सब लोगों को? हाँ Yes, जी sir. सर, Yes, बिल्कुल। sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. यस सर। लिसन वन थिंग, देखिए, absolutely 3 or 4 years back, the skill development cell of Shamlal College Evening was organized in Shamlal College Evening. And under the banner of skill development cell, we have organized 8 to 9 programs for the skill development of all students. करीबन 4 वर्ष पहले हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट सेल शामलाल कॉलेज का बनाया था और उसके तहत हम लगभग 7 या 8 कार्यक्रमों को आयोजित करा चुके हैं। कुछ प्रोग्राम हमने दिल्ली विश्वविद्यालय डिजाइन इनोवेशन सेंटर के साथ किए, कुछ प्रोग्राम हमने करोड़ीमल कॉलेज के साथ किए, कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से शामलाल कॉलेज के पटल पे कराए और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला निधि केंद्र, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के साथ करवाया। देखिए, I shall take your 2 or 3 minutes, then I shall call my student, Mr. Sagar Pittala. Keshav is also here. Praveen is also here. Keshav, Praveen और सागर पिट्टाला, ये तीनों स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी है, आप इन तीनों से बात कर सकते हैं। खैर, मैं आपको कुछ छोटी सी बात बोल के इमीडिएटली सागर को बुला करके फिर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। मैं इनवाइट करना चाहूंगा सागर पिट्टाला को। सागर, Yes, sir. Sagar, you may now present the basic. So, I'm audible? Yeah, you are audible. Please go ahead. With the 3 slides, there Yes, are continue with them. Please continue. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll do carry on with my things, sir. Good afternoon, everyone. I welcome all the freshers of Shamlal College Evening. A warm welcome to you all. Now, I will discuss few points regarding skill development cell. So, which is one of the most important society of our college. So, first of all, as you can see on the screen, I just want to let you know what is skill development. As you can read, skill development is for determining the skills, gaps, and overcoming them. Skills are required to define one's ability, and this ability is the sole reason behind the successful implementation of plans. So, to be a successful man in the college, so you need a lot of skills. So, someone said, and I quote, just life is not completed without any skills. So, it is very important to develop skills at your college level. So, guys, you all know you have completed your class +2 and now you came. So this at this point of time, skills are very very important. So I request you all to know what is skill development cell. Most of the event principals were talking about how skill development is important to us. So next, let's move on to another slide, sir. Sir, can you go for the next slide? Yeah. Sure, sir. You can see here why skill development is very very important. So as let's discuss why skill development is very important. Skill development is like a valuable addition to your life. Everyone needs to be independently capable to learn their own to earn their bread and butter for the surveillance in this competitive world. Next, coming to that next point is, in this rapid changing world, if you want to survive by your own, then skills are must. It is important to understand that knowledge doesn't gratitude skills, practice does. Theory knowledge can give you imaginative structure, but only practical knowledge can give a real exposure. Books are sufficient to throw light through some else throughout the process, but if you need to create own empire, students need to come out of their comfort zone and implement their knowledge into this real world. Your skills should not restrict you with respect to the time. Your skills should be adaptable as per the need. So this is how why skills are very important. We have divided into 3 subtopics, and because just bookish knowledge today, you many of you can see there are so many bright students who don't exactly go with books. They come out with their flying colors with their skills. Now, how to develop these skills? How can you develop few of the skills? So first point, you can just take a step ahead towards caring skills. Everything has to be cared. If you go down, we can see that core skills are those. So when you core skills have to be built up. Core skills are those skills that have direct impact on your goals. Try to assume that your initial level of learning and gratitude increase it. So core skills are important, and you need to care about your skills to implement these core skills. Next, coming to that, divide your learning into segments.
This is very, very smart thing, and even this can be implemented whenever you study also. Learning skill in the form of chunks can give you a quality output because you can't master in one night. Things take time, and if you learn it step by step, definitely you can master in one day. So learn with determination. And I have a quotation when you talk about determination: if you are determined, you can overcome any obstacle. So try to be determined for learning any skills. If you are determined enough, then no one can stop you to master in your skill. So there are many more skills which you can be developed in this skill development cell. We have beautiful programs, and many students have furnished and came out with flying colors from this society of skill development cell of Shamlal College. So you will get a great opportunity to be part of this. Do be part of with our family. Remaining presentation will be continued by my colleagues and sir. Thank you. Thank you, Sagar. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, First of all, I will personally welcome to all of you at Shamlal College Evening, especially those who are fresher in this year. And we know that this year, especially the last year, which is just pass out, was very tough for all of us. And because of the pandemic, we were not in a position to call any student at college, and we were not even able to organize any program in a physical form. हम लोग ना तो आप लोगों को कॉलेज बुलाने की क्षमता में थे और ना ही स्वयं कॉलेज आ पा रहे थे, क्योंकि किसी तरीके से ये बस पेंडेमिक का दौर गुजरना था। और आज ही पता चला है कि बस वैक्सीनेशन प्रोसेस भी 15 जनवरी के आसपास पूरे देश में शुरू होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा अपने घर में जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं और जो लोग हैं, उनके लिए भी कोशिश कीजिएगा किस तरीके से उनको जल्दी से जल्दी ये लग जाए। और हम उम्मीद करते हैं और सुनने में भी आ रहा है कि आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि Delhi University will open its offline classes, especially for the third year students, very soon. तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत जल्दी क्लासेस खोलने वाला है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस शायद इस सेमेस्टर में नहीं खुलेंगी। तो चूंकि अभी फर्स्ट ईयर के पास ये पहला सेमेस्टर है, इसके बाद एक सेमेस्टर और है फर्स्ट ईयर के पास, तो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम नहीं तो 7-8 बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कराने की कोशिश करेंगे और ऐसे कार्यक्रमों को कराने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में आप लोगों के लिए लाभदायक हो। We will try to organize such program which is especially benefited for all of you, and that program will help you to gain some knowledge in the area of skill development. देखिए, आप लोग ग्रेजुएशन में है, कोई बीए प्रोग्राम कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, कोई हिंदी, कोई बीकॉम प्रोग्राम, कोई बीकॉम ऑनर्स, मल्टीपल डिसिप्लिन से आप सब लोग हैं, and I'm sure that you all will get your degree within 3 years. But after the completion of 3 years, please listen me carefully. After the completion of 3 years, when you all will face a market, or some of you will pursue higher education, some of students would like to continue post-graduation and thereafter MPhil or PhD, but some of the students would like to do something in their life. देखिए, ग्रेजुएशन के बाद आपका असल सामना होने वाला है जिसमें आपकी प्रतिस्पर्धा, आपकी मेहनत का मुकाबला होगा पूरे भारत के विद्यार्थियों के साथ। उसमें सेंट स्टीफन कॉलेज भी होगा, उसमें हिंदू कॉलेज भी होगा, उसमें रामजस कॉलेज भी होगा, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी होगा, उसमें जामिया के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो पूरे अखिल भारत स्तर पे यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पैन इंडिया लेवल। और चूंकि डे बाय डे गवर्नमेंट सेक्टर रिड्यूस होता चला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर का स्फेयर बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने अंदर और भी कई सारी काबिलियत डेवलप करनी होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने पोटेंशियल को ढूंढते हुए, पहचानते हुए, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड योर पोटेंशियल। प्लीज अपने इंटरेस्ट को, अपने पोटेंशियल को ढूंढते हुए अभी से अपनी तैयारी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पूछते हैं, सर अब हम क्या करें? सर हम बीएड के लिए जाएं, सर हम हायर एजुकेशन के लिए जाएं, या सर हम बिजनेस शुरू करें? मुझे लगता है आप लोग अभी प्लीज पहले अपने अंदर की आवाज को जरूर सुनिएगा। और सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो कैलकुलेशन आपका स्पेकुलेटिव होना चाहिए,
वो आपका कैलकुलेशन रियलिटी और रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको अपने अंदर का पोटेंशियल ढूंढना होगा, अपने अंदर की वीकनेसेस को पहचानना होगा। उसके बाद आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी एकेडमिक्स में और नॉन एकेडमिक्स के अंदर। इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी कि कल को अगर आपको 500 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना पड़े, परफॉर्मेंस देनी पड़े, किसी कंपनी में आपको जाना पड़े, तो बेटा आपके आपके बोलने में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी नॉलेज में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं आता, उसके साथ आपको रियल लाइफ के हर्डल्स को पार करना भी सीखना होगा। अगर आपके अंदर किसी चीज की कमी है, दोज हु आर इन हिंदी मीडियम, दे हैव टू make up their English language in a good manner. Those who are in English medium, they can make up their Hindi language as well as the other subjects. कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी एक विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी और बाकी विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता है। This statement was basically given by a learned personality of India, and that is स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी एक विषय के बारे में संपूर्ण और बाकी विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता है। प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखिए। आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखने के साथ साथ आपको बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। आपको इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आपको यूज करना आना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये चीजें मैं खुद मानता हूं, देखिए 1 महीना 2 महीना या 1 साल के अंदर डेवलप नहीं होती, इसमें कई वर्ष लगते हैं। पर मैं चाहूंगा कि ये समय स्पेशली फ्रेशर्स के लिए और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लीज अपने पे फोकस कीजिए, अपने पे वर्क कीजिए, अपने पर काम कीजिए। जब आप खुद में कुछ बन पाएंगे ना, तभी आप समाज का भला कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सच बता रहा हूं, प्लीज यू मे इवन राइट माई वर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू saying right now, यहां पर उगते सूरज को सलाम है, डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। आपको बनना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने इंटरेस्ट को ढूंढना होगा खुद से। और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। क्योंकि देखिए 3 साल बाद तो आपको सीधा कंपटीशन में आना है। अगर आप 3 साल बाद कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हो और उसमें ही 2-3 साल लगा देते तो सोचिए ग्रेजुएशन करने में 3 साल लग गए, उसके आगे और 3 साल लग गए, 6 साल हो गए। पर ये समय बहुत अच्छा है आपके जीवन का। प्लीज इस समय को बहुत अच्छा यूटिलाइज कीजिए। आई वुड से प्लीज यूटिलाइज दिस गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ ऑन योर सेल्फ। इन्वेस्ट एवरी सेकेंड ऑन योर पर्सनैलिटी and gain some skill and some other knowledge which is essential for our life. आज के जीवन में जिन जिन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसको भी डेवलप कीजिए। खैर, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर हम लोगों ने काफी सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की थी। First of all, we were organized an orientation program in which we have invited Professor Bhanu Murthy from the Department of Commerce, University of Delhi, and Professor R.D. Sharma, who was an ex-vice chancellor of Jammu and Kashmir University. We have organized a lecture on civil services. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे चल के IAS ऑफिसर या IPS या इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तैयारी करना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, विजन IAS को हमने लास्ट ईयर बुलाया था कि आप हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि वो सभी स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं 3 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद। 1 साल का मतलब जो 3rd ईयर में है, 2 साल का मतलब जो 2nd ईयर में है, और 1 साल का मतलब जो 1st ईयर में है। और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपका यही ग्रेजुएशन 3 की जगह 4 साल का हो जाएगा। पर घबराइएगा मत, उसमें आपको कोई 1 साल एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, उसका बेनिफिट आपको बाद में बता दूंगा मैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहेंगे, तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं विजन IAS को बुला लूंगा। वो आपको आज से ही बताएंगे कि किस तरीके से आपने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। You all have to complete your all NCERT from 6th to 10th class.
you all have to prepare and you all have to build your English language. At least basic performance आपका इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, बेसिक रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, 10th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो विजन आईएएस से हम किसी आईएएस ऑफिसर को या फिर किसी आईपीएस ऑफिसर को या किसी रेवेन्यू ऑफिसर को बुलाएंगे आप लोगों से बातचीत करने के लिए। एंड लिसन दैट civil servant will be a young boy or a young woman. आपसे मुश्किल से 7-8 साल बड़े होंगे वो एज में, उनको हम आपसे मुखातिब कराने के लिए, आपसे मुलाकात कराने के लिए बुलाएंगे, ताकि आप उनको देखिए कि 3-4 साल पहले वो आपकी जगह पे थे और आज वो अपनी लाइफ में एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हैं। तो कैसे उन्होंने ये मुकाम पाया, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और आज आप किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए हम उनको बुलाएंगे। इसके अलावा वी वर ऑर्गेनाइजिंग वन फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ शामलाल कॉलेज इवनिंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला निधि केंद्र। इसके साथ ही हमारे कॉलेज के 8 से 10 स्टूडेंट्स ने, शायद 8 या 10 थे, उन्होंने हमारी जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली विधानसभा है, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था फॉर द यंग स्टूडेंट्स एंड दे कॉइन्ड दिस प्रोग्राम वाज दिल्ली यूथ पार्लियामेंट। दिल्ली यूथ पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था, उसमें हमारे शामलाल कॉलेज के बच्चे भी गए थे इवनिंग के, और उन्होंने बकायदा, कोई वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर बना था, कोई वहां पे एमएलए बना था, और बकायदा उन्होंने प्रैक्टिस की थी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उसकी पिक्चर्स मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, our students were participated in the program of social innovation and social enterprises, which was jointly collaborated with the Design Innovation Center, University of Delhi. इस बार भी हम इनसे अनुरोध करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू करें और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ऑनलाइन मोड में, क्योंकि ऑफलाइन तो कुछ भी नहीं चल रहा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए हमने 3 डेज का प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, पर ये वर्कशॉप चली रही थी कि उसके बाद अचानक ही दिल्ली में जो ईस्ट दिल्ली के अंदर थोड़े से रॉयट्स हो गए थे, फिर ये वर्कशॉप बीच में सस्पेंड करनी पड़ी। ये 6 डेज का वर्कशॉप था, बस हमें 3 दिन में इसको बंद करना पड़ा उसके रॉयट्स की वजह से। इसके अलावा हमारे सभी स्टूडेंट्स ने, करीबन 50 स्टूडेंट्स ने, शामलाल कॉलेज इवनिंग के 50 स्टूडेंट्स ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला निधि केंद्र, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, आई एम अगेन सेइंग इन इंग्लिश, 50 students were participated in an art appreciation course which was organized by Shamlal College Evening with the joint collaboration of Indira Gandhi National Council of Arts, Ministry of Culture, Government of India. इसके अंदर हमारे 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और मैं चाहूँगा कि इस बार भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, पर मजबूरी में इस बार हमें प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में चलाना होगा। प्लस मैं एक चीज़ और आपको रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे केवल स्किल डेवलपमेंट सेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें ही करेंगे। प्लीज कोई गुड मॉर्निंग नहीं होगा, कोई होली दिवाली नहीं होगा। प्लीज जरूरत की बातचीत की जाए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज है वो कहीं छुप ना जाए, आप सब इंपॉर्टेंट मैसेज को पढ़ सको। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, और आने वाले हर एक प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में दी जाएगी। सभी स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें हम लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपका बनाना है। एंड लिसन केयरफुली, आपके सभी सर्टिफिकेट्स डिजिटली क्रिएट किए जाएंगे और आपको आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। प्लीज अपना ईमेल चेंज मत कीजिएगा 3 साल के लिए, हमें बहुत दिक्कत होती है। अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज मत कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन समय समय पर दे दी जाएगी, और सबसे पहले प्रिंसिपल सर से बात करके मैं गूगल मीट की लिमिट 100 से 500 बच्चों की कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि 300, 350, 400 बच्चे भी जुड़े तो हमारा प्रोग्राम रुके नहीं, जैसे आज रुका था शुरू में, जिसमें प्रिंसिपल सर भी दाखिल नहीं हो पाए। तो सारी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्या क्या प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, वो भी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी जाएंगी। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज जुड़े रहिएगा, वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप, ड्यू टू सम लिमिटेशन, वी विल डिसकंटिन्यू अवर व्हाट्सएप ग्रुप इन फ्यूचर, सो यू ऑल हैव टू बी विद अस ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप।
सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स का डिस्कशन वहाँ किया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वहाँ किया जाएगा। एंड प्लीज कीप ऑल दिस सर्टिफिकेट्स केयरफुली विद यू, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स कल को जब जॉब के लिए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा मैं, ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस सर्टिफिकेट विल हेल्प यू अ लॉट. They will ask you what programs you have organized apart from your regular degree. अपनी रेगुलर डिग्री के अलावा आपने और क्या कार्यक्रम किए हैं, क्या पार्टिसिपेशन किया है, ये आपकी कल को पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा. खैर, right now I am showing you a souvenir of an orientation program of 1920. मैं कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ पिक्चर्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो स्किल डेवलपमेंट सेल ने ऑर्गेनाइज किए थे वर्ष 2019 प्रोग्राम में. इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं भानुमूर्ति और प्रोफेसर सर हैं, और इसमें सारी फैकल्टीज के साथ हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे. ये लास्ट में एक पिक्चर क्लिक किया गया था. नाउ आई एम शोइंग योर नेक्स्ट पिक्चर. ये विजन आईएएस की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कि किस तरीके से वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं. इसमें आप जो ये माइक पकड़े हुए यंग पर्सन को देख रहे हैं, ही इज एन यंगेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर इन दिल्ली पुलिस. ये एसीपी है दिल्ली पुलिस के अंदर, और जस्ट अभी आईपीएस ऑफिसर बने हैं. और आप लोगों को जान के हैरानी होगी और खुशी भी होगी, कोइंसिडेंसली मेरे संपर्क में दिल्ली पुलिस के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर एस के गौतम. मैं उनको भी आप लोगों के साथ जोड़ना चाहूंगा ऑनलाइन. आप लोग जुड़े रहिएगा. यंग आईपीएस ऑफिसर को और एक कमिश्नर को भी, कमिश्नर का मतलब एडिशनल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को आप लोगों के साथ जोड़ूंगा. ये वो प्रोग्राम्स की पिक्चर्स आप देख रहे हैं जिसमें विजन कोचिंग आईएएस सेंटर आया था, और इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फैसिलिटेट किया था. और एक और खास बात, आप में से यदि कोई भी स्टूडेंट कल को जाके विजन कोचिंग आईएएस सेंटर से या दृष्टि, देखिए एक बात याद रखिएगा, वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग देयर प्रोग्राम, कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड. We will talk to any institution which will definitely give a benefit to our students, who will give us transparent and fair knowledge to all my students. We will invite them. हम किसी को कोई स्पॉन्सर नहीं करते और ना ही हम इनसे कोई स्पॉन्सरशिप मांगते हैं. एक बात. दूसरी चीज, आप सभी लोग इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कीजिएगा, और इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा. यंग आईपीएस ऑफिसर से या यंग इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर से आप बातचीत कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा. सेकंड प्रोग्राम, यहाँ हमने कॉलेज की फैकल्टीज के लिए एक फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था. ये जो आप इस समय पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली दिल्ली यूथ पार्लियामेंट के अंदर आपके जो सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट जो पास आउट कर चुके हैं, उन्होंने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली यूथ पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करके एज ए पॉलिटिशियन डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था, और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था इन स्टूडेंट्स का. ये उसी की पिक्चर्स आप देख रहे हैं दिल्ली यूथ पार्लियामेंट की. हमारे श्यामलाल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ग्रुप फोटोग्राफ किया था एक्सपर्ट्स के साथ. ये हम लोगों ने 3 दिन का एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप स्टार्ट किया था, पर ये 3 दिन बाद सस्पेंड करना पड़ा. ये पिक्चर्स आप जो इस समय देख रहे हैं बेसिकली श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला निधि केंद्र, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के साथ 50 बच्चों का एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था, आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स. इस आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स के अंदर बच्चों को सिखाया गया था कि किस तरीके से नेशनल म्यूजियम में चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको डिस्प्ले किया जाता है, और किस तरीके से हम अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, अपने हिस्ट्री को, अपने जो क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं. इसके ऊपर 6 दिन का स्टूडेंट्स ने फिजिकली पार्टिसिपेशन किया था. ये वो सब आप पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं. देखिए, जहां तक इस वर्ष के कार्यक्रमों की बात है, देन आई वुड से दीज programs will be our tentative programs in a 2021. We will invite a Vision IAS coaching center to give you an insight for how to prepare for the civil services. We will organize this program by 2 institutions, and one institution will do it in English medium and another institution will organize this program in Hindi medium. एक इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए हम लोग इन्वाइट करेंगे, और दृष्टि आईएएस को हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इन्वाइट करेंगे. इसके साथ ही
आप में बहुत से स्टूडेंट्स बीएड को लेके बहुत सारी क्वेरीज पूछते हैं, सर बीएड कहाँ से की जाए, कैसे करनी चाहिए, इसकी तैयारी कैसे होती है, हम किस किस यूनिवर्सिटी से बीएड को कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर्स को इन्वाइट करूंगा. दे विल गाइड यू एंड हेल्प यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ बीएड एंट्रेंस एग्जाम एंड हाउ this program will be organized by the different universities and how it will benefit to all of you in your career. Apart from this, प्राइवेट कंपनी एक सीवी ऑल वो स्टूडेंट्स को सिखाती है, प्रोफेशनल्स को सिखाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके लोगों को सिखाती है कि प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाया जाता है. इसके लिए हम लोग सीवी ऑल के सीईओ को आप लोगों से मिलाएंगे ऑनलाइन. ये प्रोग्राम्स कब किए जाएंगे, किस डेट को किए जाएंगे, किस टाइम पर किए जाएंगे, इसके लिए प्रॉपर हम एक पोस्टर निकालेंगे. पोस्टर में रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा. सारी डिटेल्स आपको समय से पहले दी जाएगी, कम से कम 7 दिन पहले सूचना आपको दे दी जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी विल ऑर्गेनाइजिंग एंड इनवाइट सम एक्सपर्ट फ्रॉम अ कैरियर काउंसलिंग. दे विल हेल्प यू एंड गिव यू सम इनसाइट रिगार्डिंग योर कैरियर. आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कैसे अपने कैरियर को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसको लेकर के एक्सपर्ट से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा. इसके अलावा किस तरीके से आप अभी से अपने समय का प्रबंधन, हाउ यू ऑल कैन मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट सिंस फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट. आज ही मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था. ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर. नो नीड टू कोट हिज नेम. He was saying, sir, I am very disturbed. I am not able to cope up with all changes. जो परिवर्तन हो रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करूँ. घर में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, कॉलेज में कभी कभी क्लास नहीं हो पाती. तो उस तरीके की समस्याओं के लिए हम लोग आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के लेकर के भी एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे. इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई खास प्रोग्राम आपको चाहिए, प्लीज आप लोग जॉइंटली सागर पिटताला, प्रवीण और केशव और मोहम्मद शाद, मैं मोहम्मद शाद का नाम शुरू में लेना भूल गया था. मोहम्मद शाद से इन चारों स्टूडेंट से आप बात कीजिए, बताइए कि हम इस चीज पे प्रोग्राम चाहते हैं. मैं इन चारों के साथ मीटिंग करके वो प्रोग्राम आपके लिए आयोजित करूंगा. ठीक है. और इन्हीं के साथ ये हमारा लास्ट का पीपीटी था. मैं 2 मिनट आप लोगों के साथ लाइव जुड़ना चाहूंगा मीटिंग में. जस्ट होल्ड ऑन. अब मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है, इफ यू ऑल हैव अ क्वेरी, एनी स्पेशल इंक्वायरी, देन यू मे टॉक टू मी प्लीज. कोई 10-12 स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप एक एक करके मुझसे बात कर सकते हैं. अखिल प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए. मोहम्मद सलमान म्यूट कर लीजिए. आप में अगर कोई क्वेरी है, प्लीज कोई हाथ रेस करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना नाम, क्लास और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है. प्लीज, anyone has any query or any question, then I will make it clear right now. Yes, Mohammed Salman, you can speak. Mohammed प्लीज Salman. मैं करना चाहूंगा, ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना माइक ऑन कर रखा है, प्लीज अपने आप को स्विच ऑफ कीजिए प्लीज. हाँ प्लीज, किसी का क्वेरी है तो पूछिए. कोई क्वेरी Sir, I don't have. या प्लीज सलमान प्लीज पूछिए. प्लीज पूछिए आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अपना. Sir, I don't have any questions. Okay, no issue. Then I think you all are aware about our programs, which we have. Yes, sir. Yeah, please. Salman, do you have any question? Sir, I agree all the. मोहम्मद शर्मा, अगर आपको बोलने प्रॉब्लम है तो आप लिख के बता सकते हैं. Salman, do one thing. Just put your query on a WhatsApp or a Telegram group. I shall personally respond to you. Okay? No issue. Yes, sir. I shall respond to you later. Please put your question on a Telegram group. Anyone else? Yes. किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. And आप सभी फ्रेशर्स का बहुत बहुत वेलकम है. और बहुत जल्दी मैं प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करने वाला हूं.
और सारी इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाएगी। बस आपने इतना करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी प्लीज सभी स्टूडेंट्स अपने आप को टेलीग्राम ग्रुप पे आके हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 8 फरवरी के बाद अगर व्हाट्सएप ने हमसे परमिशन मांगा, सभी स्टूडेंट्स की डिटेल को एक्सेस करने का मांगा, तो शायद मैं परमिशन ना दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्राइवेसी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन की प्राइवेसी होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर ही सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और वहीं आप अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करके रजिस्टर्ड करके आप प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं। एंड कीप वन थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, if suppose if I am organizing one program in the last week of January and 50 students are participating in that program, that your participation is must for all. If you think कि देखिए अगर आपको लगता है कि 2 दिन का प्रोग्राम है, मैं एक दिन अटेंड करूं दूसरे दिन, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज मैं कोशिश करूंगा प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो और कम से कम 2 घंटे चले, बट एक दिन में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए, ताकि उससे आपको कुछ नॉलेज मिल सके। पर 2 घंटे आपको पूरा अटेंड करना पड़ेगा। So, excuse me. या सागर प्लीज सागर। So we have Continue. a question from a student. Yes, sir, we have a question from a student. The question is that does the college provide internship opportunities? Can you please answer that question? Sagar, just tell your experience, what you get in the last year. Just share your experience about Yeah. local human rights. Yeah. Please tell him. Yes. Yeah, the student who have posed this question, that does the college provide internship opportunity? First of all, I would like to thank the convener of this society, Ritesh Bharadwaj sir, for recommending me for the internship of National Human Rights Commission, which I have concluded recently. It was a great experience. Yes, we do get a lot of opportunities for internship, so don't miss skipping this society. So we have done many internships. Personally, I have done many internships, and recently I have applied for Lok Sabha internship also. So being a part of this skill development cell, yes, you do get a lot of opportunities during your first year, second year, third year, where you can pursue private internship as well as government internship. So definitely you will get a lot of opportunities. I personally have pursued many internships. So you get a lot of opportunities. So you don't have any doubt that definitely you will get a good internship programs from our SDC. Please, I'm reading one question. Akash Anand, please sir link share कर दीजिए WhatsApp ग्रुप में। बेटा अभी तो चूंकि स्टूडेंट्स प्रोग्राम खत्म हो चुका है, सागर, केशव एंड प्रवीण प्लीज WhatsApp ग्रुप के अंदर टेलीग्राम का लिंक दोबारा से डाल दीजिएगा, ताकि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो उसको ज्वाइन कर सके। ओके, जितेंद्र कुमार पटेल, इनका भी यही क्वेरी था। Amodin is asking, sir, does college providers help in getting internship? Okay, Sagar has just respond you. देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो भी प्रोग्राम शामलाल कॉलेज इवनिंग कराएगा केवल उसी में आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा भी जैसे ही मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, मुझे अगर कहीं पता लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम को करने से कोई फायदा होगा, देन I will immediately upload that information on your Telegram group. Don't worry. If you need any signature from college, I will help you. If you need any, suppose देखिए अगर आपका कोई प्रोग्राम अटेंड होता है कल को जाके फ्यूचर में, जब फिजिकली क्लास चालू हो जाएगी, अगर आप लोग कल को जाके कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, if you will attend any program anywhere else in Delhi, then I shall give you a certificate, and that college teacher will give you attendance. Your attendance, you will not get lose your attendance, you will get your complete attendance during your program. जितने दिन का आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे बाहर हमारे बिहाफ पर, उसमें कॉलेज आपको पूरी अटेंडेंस देगा। क्लियर? तो पूरी तरीके से आपको कॉपरेशन मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कॉलरशिप्स आएंगी वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कॉलरशिप्स आएंगी, चाहे यूआर कैटेगरी के हो, चाहे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, चाहे ओबीसी कैटेगरी का, चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, चाहे सबके लिए हो, किसी भी तरीके का यदि कोई एंट्रेंशिप आता है, कोई फेलोशिप आता है, कहीं भी कोई बेहतरीन प्रोग्राम आता है, जैसे अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है स्वयं, SWAYAM। स्वयं के पोर्टल पे जाके अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके ग्रुप पे एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स टू परस्यू अ कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग। बाहर के इंस्टीट्यूशन उस कोर्स के लिए बहुत मोटा पैसा वसूलते हैं, वही चीज आपको भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसका भी लिंक हम आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और ये चारों स्टूडेंट्स आपको उसमें हेल्प करेंगे। कॉलेज के लेवल पे कोई हेल्प चाहिए होगी तो उसमें भी आपको मदद दी जाएगी। बस आपसे इतनी वो है कि आप सीरियसली उस प्रोग्राम को करते हुए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जिस भी प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है आप कीजिए, and everybody will get a certificate from Shamlal College Evening with my signature along with principal signature, and that certificate will help you a lot in the future. If you get any recommendation letter for any course from college, then our skill development committee will help you a lot. Okay, with this word मैं 3 स्टूडेंट्स के दोबारा से नाम, 4 स्टूडेंट्स के नाम आपको रिपीट करना चाहूंगा। बार बार मोहम्मद शाद का नाम मैं भूल जाता हूँ। मोहम्मद शाद, सागर पिट्टाला, प्रवीण और केशव, ये चारों स्टूडेंट से आप हेल्प ले लीजिएगा। और इसी के साथ मैं सागर आपको बताना चाहूंगा, बोथ ऑफ थैंक्स कर दो सब स्टूडेंट्स को। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम भी समाप्त करना चाहेंगे। बच्चों, आपका कोई क्वेरी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। सागर, ओवर टू यू। सागर पिट्टाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it's over to you. You may Thank you, sir, for thanks to all students. And now we will pack up our program, okay? And very soon we all will meet. Sagar, it's continue. Please carry on. First of all, I would like to thank Ritesh Bharadwaj sir for organizing this event of orientation program for the session 2021. So guys, if you have any queries, you can contact us. You are free to contact us. We have posted all our details, okay, on the chat box. You can just check and try to join our Telegram group so that if you have any queries, we'll guide you. Especially for internships, if you want anything, you can contact me personally. So thank you. I thank you all personally for sparing your time. So let's see you all in the college as soon as possible. Sagar, sorry. Okay? So do take care, guys. Sir. Sagar, sorry. Yes, sir. Yes, sir. Here is one question. Anu Saroha, Anu is saying, sir, we don't have number. Anu, we will upload all the number of your friend, especially these 4 friends who will help you. इनके नंबर दोबारा से ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे। Okay, sir, we don't have to program related to finance in skill development cell. Sir, do we have program related to finance? Definitely, Hrithik. I will discuss with my commerce department, and commerce department will definitely give me some help. फाइनेंस में आप किस तरीके का प्रोग्राम चाहते हैं, प्लीज सागर को बताइए, प्रवीण को बताइए, शाद को बताइए। इन चारों के नाम और नंबर मैं शेयर करूंगा, इनसे बात कीजिए, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं। किस तरीके का प्रोग्राम आप चाहते हैं, आपका किस में इंटरेस्ट है, बट प्लीज मुझे मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ने कहा ये कराओ और 20 कह रहे हैं कुछ और कराओ। तो जो भी मेजॉरिटी का आएगी डेफिनेटली आई विल, कम से कम आई विल रिक्वेस्ट एटलीस्ट इफ 20 to 25 स्टूडेंट्स, और हम बीच बीच में ऑनलाइन मुलाकात करते रहेंगे। आप लोग इतनी देर अपने व्यूज दीजिए किस किस पे आप प्रोग्राम चाहते हैं, तो उस पे हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे, डोंट वरी। डिजिटल मार्केटिंग पे एक अभी आया है शुभम का। शुभम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑन अ स्वयं पोर्टल विच इज अ स्पेशल पोर्टल ऑफ MHRD मिनिस्ट्री। इसका लिंक भी आपको तुरंत दोबारा भेज दिया जाएगा। मैं सागर, प्रवीण, शाद और केशव से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का डिटेल यहाँ पर अपलोड कर दिया जाए स्किल डेवलपमेंट सेल के टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग फटाफट वहां पे जाके अपना रजिस्टर करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। एंड एट लास्ट I will say my special thanks to all my students and special thanks to Mohammad Shad, Praveen, Keshav and Pittala who helped me a lot to organize this program for all of you. किसी तरीके से ये समय ठीक से निकले, उसके बाद हम लोग फिजिकली मिलके बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। मे भी अगले वर्ष ये मैं स्किल डेवलपमेंट सेल छोड़ दूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 2 साल हो गए इसको करते करते, ये मेरा अंतिम वर्ष है।
अगले साल कोई नया टीचर इसको संभालेगा। पब्लिक स्पीकिंग डेफिनेटली। फोटोग्राफी, अखिलेश फोटोग्राफी पे बेटा थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन इसको करा पाने में थोड़ा मुश्किल होगा। फोटोग्राफी ऐसा कोर्स है जब तक आप सामने क्लास में ना आए पॉसिबल नहीं है। यूथ पार्लियामेंट की जहां तक बात है, यूथ पार्लियामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। इफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली will organize this program in this year, definitely I will send your nominations to them. E-commerce marketing, definitely Mohammed. Youth Parliament can contact me. Definitely. Dev Varshne, acting, definitely I will call someone. देव वाशनी एक्टिंग के लिए देखिए मैं आप लोगों के बीच में कुछ क्विज डाल दूंगा। अगर मुझे मोर देन किसी भी एक्टिविटी के लिए, अगर अप्रोक्सीमेटली आप लोग 350 स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी एक्टिविटी के लिए 100 स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं, मैं डेफिनेटली वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करूंगा। आप लोगों के बीच टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दूंगा। जितनी भी ज्यादा वोटिंग, जिस भी एक्टिविटी को, सागर ये ठीक रहेगा, जिस भी एक्टिविटी को सबसे ज्यादा वही एक्टिविटी हम कराएंगे आपके लिए। डोंट वरी, ओके। विद दिस वर्ड आई विल से ऑल यू बी सेफ, स्टे होम। बिल्कुल भी बाहर इस आशा से मत घूमेगा कि कोरोना जा चुका है, अभी भी है। समय वैक्सीनेशन जरूर स्टार्ट हो रही है, पर पहले मेडिकल स्टाफ को दिया जाएगा, फिर सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा, उसके बाद बीमार लोगों को दिया जाएगा, और यंगस्टर्स का नंबर सबसे बाद में आएगा। तो जरा संभल के रहिए और सुरक्षित रहिए, ओके। थैंक यू सो मच टू बी हियर विद अस on the program of an orientation program of skill development cell. Thank you so much to all my dear, and I will definitely organize some program. Hrithik Mathur is saying, sir, in finance like stock market, finance planning, financial management means that you give us exposure in corp. Definitely I will do this. Take my commitment on this word. Stock market, definitely I will call some expert and will organize some program on stock market. आप लोग पार्ट टाइम शेयर और शॉर्ट स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट भी सीख सकते हैं। एनीवन कैन डू दैट। डेफिनेटली आई विल कॉल सागर, स्टॉक मार्केट, financial planning and financial management. Please keep it in your mind, okay? We will try to organize some program on this, okay? Thank you so much. We all will meet very soon, and I shall give you all important information regarding the upcoming programs of skill development cell. Thank you so much and God bless you all, dear. Please हम लोग मीटिंग को यहाँ क्विट करें, इजाजत है? सागर, please it's over to you, Sagar. Sagar, Keshav and please now session is over to you. मैं क्विट करता हूँ बेटा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, अगर बात करनी है तो बात कीजिए स्टूडेंट में, हैं? ठीक है? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. My pleasure, dear. My pleasure. If you have any questions, please Praveen, Sagar और केशव अभी भी Thank you, sir. थैंक्स Thank you, sir. आप उनसे बात कर सकते हैं बेटा। मैं क्विट करता हूँ, ठीक है? थैंक यू, गुड इवनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस। Thank you. Okay, sir. Yeah, thank you guys. If you have any query, you can text us on Telegram. Okay, our numbers are there. So do text us if you have any doubts regarding anything. We'll help you out. So I think you don't have any queries. Somebody asked about youth parliament. So I think notification is not yet released. We'll let you know when the notification is released. As far as my concern, the meeting is concluded. So if you have any queries, you can text us. Take care. Until then, take care, guys. You can leave. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you. It was pleasure meeting you all.